All right, so starting off with the Cambridge O level, October November 2023, paper 25070, 1 hour 45 minutes are there for this paper. Choose from the list of compounds to answer the following questions. Each compound may be used once, more than once, or not at all. So identify the compound that is a waste gas for digestion in animals. So when animals complete the digestion, livestock or animals, cattle, farms, goats, ये सारे मीथेन रिलीज करते हैं. They release this gas known as methane. फिर वो आगे कह रहा है it turns blue cobalt to chloride pink. That will be your water. वाटर के दो केमिकल टेस्ट होते हैं. एक केमिकल टेस्ट ये होता है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो व्हाइट कलर का होता है वो ब्लू हो जाएगा जब हम उसके अंदर वाटर डालेंगे. दूसरा टेस्ट होता है कि जो कोबाल्ट क्लोराइड होगा वो आपके पास ब्लू होता है, इट विल टर्न पिंक जब हम उसमें पानी डालेंगे. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर वाटर, दैट कॉपर सल्फेट टर्न्स ब्लू एंड कॉपर कोबाल्ट क्लोराइड टर्न्स पिंक. These are both the tests for water. Reacts with ethene above 100 degrees Celsius to produce ethanol. Ethene to ethanol convert करने के लिए what is the reagent that is needed? Addition of water in the form of steam. It is a product of photosynthesis. Photosynthesis क्या होता है? When carbon dioxide reacts with water to produce glucose and oxygen. These are the two products of photosynthesis. Reactants में carbon dioxide और water then this is a photochemical reaction. Contains an anion with a charge of -2. तो if we look at magnesium oxide में cation तो Mg2+, लेकिन जो anion है, anion has a charge of -2 oxygen, so it is going to be magnesium oxide will be the answer. Question number 2. This question is about metals. Chromium is a transition element. Sodium is an element in group 1 of the periodic table. State two physical properties of chromium that are different to those of sodium. तो जो chromium transition metals होते हैं ना, they are more dense than group 1 metals. ठीक है. इसके अलावा दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एज वेल. ये ट्रांजिशन मेटल्स ओवरऑल ही टफ होते हैं देन ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स. ग्रुप 1 थोड़े से लो डेंस हैं, सॉफ्ट होते हैं ओवरऑल. So the number of protons over here in chromium you can see is 24 और neutrons हम निकाल सकते हैं. 53 minus 24 करें तो आंसर क्या आ जाता है आपके पास? 29. Cr2O3 reacts with carbon and chlorine to produce chromium 3 chloride CrCl3 and carbon monoxide. ओके वो कह रहे हैं Cr2O3 को रिएक्ट करें कार्बन के साथ तो क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? क्रोमियम 3 क्लोराइड. क्रोमियम 3 क्लोराइड का मतलब CrCl3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को. राइट पे 3 क्लोरीन हो गए हैं, लेफ्ट पे ये है, यहाँ पे 5 ऐड 3 नाउ 3 ऑक्सीजन हो गए दोनों साइड पे. लेकिन वहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ भी 2 होने चाहिए. बट इसकी वजह से राइट पे 3 कार्बन हो गए तो लेफ्ट पे भी हम 3 कार्बन कर देते हैं. कंप्लीट द डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सोडियम आयन. तो सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8 1. ये है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जब वो आयन बनता है तो वो क्या हो जाता है? 2 और 8. और उसके ऊपर एक चार्ज भी आ जाएगा +1 का. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन. This table shows the observations made when four different metals are heated in oxygen. Put the metals in the order of their reactivities and put the least reactive metal first. Okay, so Aga Heather, can you tell me which one would be the least reactive and which one would be the most reactive? सर लीस्ट रिएक्टिव निकल, मोस्ट रिएक्टिव सोडियम. Okay, और बीच में क्या है कि पूरी सीक्वेंस शुरू से बता दे. सर मोस्ट रिएक्टिव में फिर सोडियम के बाद फिर लैंथनम, फिर उसके बाद मरकरी. गुड जॉब. ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ लिख लेते हैं. ओके लेट मी रीड. एक दफ़ा बर्न्स रैपिडली है, वो फॉर्म्स है, सही है. ठीक है. यस, यही बनेगी. नहीं, बल्कि मरकरी. हाँ ठीक है. द लीस्ट रिएक्टिव विल बी मरकरी. उससे आगे फिर यू आर गोइंग टू हैव निकल, देन वील हैव लैंथनम. मोस्ट रिएक्टिव में फिर सोडियम आ रहा है. एक्सप्लोसिव विगरस रिएक्शंस.
Aluminium is used in food containers and overhead electrical cables because it is resistant to corrosion. Explain why aluminium is resistant to corrosion. क्योंकि एल्यूमिनियम ना एयर के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेता है। जब वो एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते हैं ना तो उसकी वजह से इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रिएक्टिंग विद वाटर, प्रिवेंट्स द रिएक्ट विद वाटर, इसलिए उसकी रस्टिंग नहीं होगी। स्टेट टू अदर रीजंस व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स, क्योंकि इट हैज अ लो डेंसिटी, लाइट वेट है ना, लाइट वेट है तो आप इसको तारों में यूज कर सकते हैं, प्लस इट्स अ गुड कंडक्टर, लाइक इट हैज अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ओवरऑल। ओके, इसके स्टेट सिंबल्स मुझे बताएं क्या हो जाएंगे, एनीवन? सो Sir, प्रोडक्ट साइड पे solid, H2O लिक्विड, aqueous. ओके एक सेकंड, प्रोडक्ट साइड पे H2O लिक्विड, ठीक है, और Sir, उसका calcium रिएक्टेंट्स carbonate. पे वो एक्वस होगा। एक्वस होगा, एसिड एक्वस होंगे, और कैल्शियम और वो कार्बोनेट solid. लाइमस्टोन है, सॉलिड होगा। क्लियर? ओके, जी so सर. figure 3.1 shows the volume of carbon dioxide gas released as the reaction proceeds. We can see over here कि जैसे जैसे आपके पास टाइम गुजर रहा है, the volume of carbon dioxide produced increases and at one point it becomes constant as well. So this means कि ये कोई rate of reaction का कोई सवाल है। Reduce the volume of carbon dioxide gas released after 40 seconds. तो 40 seconds के ऊपर आप देख लो कितनी बन रही है, 34। The student repeats the experiment using the same mass of smaller pieces of calcium carbonate. All the other conditions stay the same. Draw the line on the grid in figure 3.1 to show how the volume of carbon dioxide changes when smaller pieces are used. पहले bigger pieces थे, अब जैसे ही आपके पास smaller pieces use हो जाएंगे, उससे क्या होगा, the rate of reaction will become हायर, और जब रेट ऑफ रिएक्शन बिकम हाई हो जाएगा तो उसकी जो लाइन है वो ज्यादा स्टीपर आप शो कर देना, बिकॉज ग्रेडियंट शोज अ फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये जो लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स है ना वो सेम होना चाहिए, it should remain the same, only the gradient of line should be steeper, showing that the rate of reaction has increased. Clear? Good. Now part C और D को देखें, मैं 1 minute बाद I'll ask questions from it. वालेकुम सर, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, आप बता सकते हैं क्या चल रहा है? रीड पार्ट नंबर C एंड D, और फिर मैं भी पूछूंगा दोनों के कंप्लीट आंसर्स, क्योंकि किसी से भी पूछ सकता हूँ। सर इस एक्सपेरिमेंट पहले किस टेम्परेचर पे की थी? ओके, एक्सप्लेन मी द आंसर फॉर सी, कि जब हम यही सेम एक्सपेरिमेंट एक डिफरेंट टेम्परेचर पे करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन नाउ। पहले आपके पास जो सर होता था, इनिशियल टेम्परेचर क्या वो था? आपके पास इनिशियल टेम्परेचर क्या था, 25, नाउ 20 हो गया है, सो व्हाट वुड बी चेंज्ड? सर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा. रीजंस? Particles have less kinetic energy, so less frequent collisions. less speed, less frequent collisions, so less products would be formed per unit time. Got it? बल्कि लेस प्रोडक्ट्स नहीं, आप बोलो लेस वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को डायरेक्ट कर सकते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की बात हो रही थी। अ सैंपल सर ऑफ हम यहाँ पे यील्ड बोल सकते हैं ना कि यील्ड कम प्रोड्यूस होगी, राइट? यील्ड पर यूनिट टाइम कम प्रोड्यूस हो रही है, यस, गुड। A sample of carbon dioxide is put into a gas syringe. The end of the gas syringe is then blocked so that no gas can escape. Explain using kinetic particle theory why increasing the pressure in the gas syringe decreases the volume of gas. क्योंकि particles are pushed closer together.
आप जैसे प्रेशर बढ़ाओगे उनके पास वॉल्यूम कम हो जाएगा, दे आर पुश्ड क्लोजर टुगेदर। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C. You guys have 2 minutes and then I'll ask you questions from it as well. All right, Ryan, can you tell me the answer for 4A? When magnesium iodide aqueous was electrolyzed, what was the product formed at anode and cathode? नो आंसर। हैदर आप बताएं। नो अच्छा नो, रयान बता रहे। हाँ आप बताओ। रिपीट कर सकते हैं? आप बताएं पार्ट ए का आंसर क्या है? जब एक्वस मैग्नीशियम आयोडाइड का हम्म। इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो उसमें से एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या सर बनेगा? आयोडीन, आयोडीन एनोड पे, कैथोड पे हाइड्रोजन। वाई? सर जब कैथोड का होगा तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा बिकॉज Mg ज़्यादा रिएक्टिव है, और एनोड का बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आई थिंक उसकी वजह से प्रॉबेबली। ठीक है। और जब मोल्टन मैग्नीशियम आयोडाइड होगा तो आगा खैदर आप बताएं एनोड और कैथोड पे कौन प्रोड्यूस होगा? सर अगर मोल्टन होगा तो एनोड पे वो आयोडीन और फिर कैथोड पे मैग्नीशियम। अब कैथोड मैग्नीशियम क्यों? सर क्योंकि मोल्टन है, अगर एक्वस होता तो फिर हाइड्रोजन आयंस होते। गुड जॉब। तो शोएब, कैन यू टेल मी द टेस्ट फॉर aqueous iodide ions? Sir, add dilute nitric acid and then add silver nitrate. That will produce a yellow precipitate. गुड। अगर ब्रोमाइड या क्लोराइड का आता तो? सर क्लोराइड का वाइट था और ब्रोमाइड का क्रीम। Good. Iodide ions reduce magnesium 4 oxide to manganese plus 2 ions. Explain in terms of movement of electrons. हाँ जी, आगा है इधर। सर वो आयोडीन आयंस के टेस्ट के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड यूज कर सकते हैं। नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, उसकी वजह से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि दोनों में आपके पास कॉमन आयन आ गया ना, उधर भी आयोडीन हो गया उधर भी आयोडीन आ गया। आप ए लेवल से पढ़ोगे इस इफेक्ट को तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है सर। या सो वो कह रहे हैं आयोडाइड आयंस जो है ना, वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करे, क्योंकि वो मैग्नीज 4 ऑक्साइड को MnO2 को Mn2 प्लस में कन्वर्ट करे। कैसे हम ये टर्म ये प्रूव कर सकते हैं? ये बात यू कैन से कि आयोडाइड आयंस बेसिकली इटसेल्फ गॉट ऑक्सीडाइज। जो आपके पास आयोडाइड आयंस थे इटसेल्फ गॉट ऑक्सीडाइज्ड। वाई? क्योंकि उसने खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको दे दिए? गेव इलेक्ट्रॉन टू MnO2, कि वो रिड्यूस होके क्या बना दे? Mn2 प्लस, क्योंकि reducing agent causes reduction itself gets oxidized. State the name of type of reaction that involves simultaneous oxidation and reduction. ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों हो रही हो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। Phosphorus 3 iodide is produced when phosphorus reacts with iodine. Complete the dot and cross diagram. Phosphorus ग्रुप 5 में आता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो phosphorus, क्योंकि वो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, phosphorus के अपने 2 मतलब रहते हैं अभी भी। और आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्डिंग में बिजी, मतलब सारे आयोडीन के पास बाकी 6 पीछे रिमेनिंग है। So we can draw the 6 remaining electrons over here. Question number 5 shows a displayed formula for compound A. Draw a circle around the functional group that reacts with aqueous bromine. ऐसा कौन सा functional group है जो aqueous bromine के साथ react करेगा? The unsaturated group. क्या can someone tell me that saturated carbon single bond react कर सकता है aqueous bromine के साथ? No, sir. नहीं कर सकता, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कलर ऑफ aqueous bromine पहले क्या होता है? ऑरेंज। और जैसे ही आप कंपाउंड ए डालोगे, कंपाउंड ए अनसैचुरेटेड है ना, तो ये कलरलेस कर देगा उसको। दिस इज अ सर टेस्ट इसके फॉर। पीछे बता सकते हैं? इसके पीछे रीजन, यस सर। ये आपके पास है एक एल्कीन, ठीक है, और ये आपके पास है एक एल्केन। दोनों चाहते हैं कि हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करें, दोनों की ख्वाहिश है, लेकिन दोनों ये भी चाह रहे हैं कि हमें कुछ देना ना पड़े, मतलब हमें हाइड्रोजन ना देना पड़े, ठीक है।
एल्कीन्स के पास ऑप्शन है कि उनको अपना हाइड्रोजन गिव अवे ना करना पड़े, बट अपना एक डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि उन दोनों कार्बन के पास एक एक खाली जगह रह जाए और वहां पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाए। अब एल्केन भी चाहता है कि मैं ब्रोमीन के साथ ये करूं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि पहली उसकी ये है, उसकी पहली जो एक ही वांटेड कि मैं अपना हाइड्रोजन तो नहीं दूंगा। फिर और क्या तरीका है? हर कार्बन ऑलरेडी आपके पास 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है। क्या और कोई आके यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं? क्या ये अपना आपस में सिंगल बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं? डबल तो चलो समझ आती है कि वो डबल को सिंगल में कर सकते, क्या एल्केन्स अपना सिंगल बॉन्ड तोड़ेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। गॉट इट? सो दे नहीं डोंट सर। रिएक्ट विद ब्रोमीन। रिएक्टेंट्स में ब्रोमीन ऑरेंज ही रहेगी, प्रोडक्ट में भी ब्रोमीन एज इट इज फॉर्म हो जाएगा, तो ऑरेंज ही रहेगा कलर। तो व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए? टोटल 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, C4H8O. Compound A is a liquid at room temperature. Describe the motion and separation of the particles in a liquid. तो motion क्या होता है? They slide over each other. They are not very packed. ठीक है, बहुत ज्यादा पैक नहीं होते। They can move around. और separation आप कह रहे हो कि they are just close together. Packed together नहीं लिखना, tightly packed ही लिखना, close together. This shows the structure of compound B. ये polymerize हो गया है। अब पॉलिमराइजेशन कैसे करते हैं? पहले तो आपको जो ये मोनोमर दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा आसान करो अपने लिए। कैसे आसान करोगे? ये वाला हिस्सा पकड़ो, वो हिस्सा पकड़े जिसमें ऑलरेडी कार्बन कार्बन बना हुआ है, डबल बॉन्ड। ठीक है, हमेशा वो 2 कार्बन पकड़े विच हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन देम। मैं पूरा तरीका बताऊंगा, फिर मैंने बाद में सुनना भी है किसी से कि क्या तरीका है। पिक दोज 2 कार्बन विच हैव अ डबल बॉन्ड, देन ड्रॉ के इस कार्बन के नीचे क्या है? H, और इस कार्बन के ऊपर क्या चीज है? CH3। लेफ्ट वाले कार्बन के ऊपर क्या है? H, और लेफ्ट वाले कार्बन के नीचे क्या है? ये पूरी चीज CH3। ये समझ आ गया सबको? हाउ हैव आई ड्रॉन द मोनोमर इन सिंपल टर्म्स? यस सर। गुड। यस सर। अब इसका पॉलीमर बना लेते हैं। तो अच्छा जी, कैसे बनाएंगे? अब आप डबल बॉन्ड बीच में से ब्रेक कर दें। ठीक है, और हमें 2 कंपाउंड शो करने हैं, तो 2 बना दें। H, CH3, CH3, H, फिर H, CH3, CH3, H। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। तो सबसे पहले ना, ऐसा कोई टफ सा मोनोमर दिया हो ना, उसको अपने लिए इजी कर लो। बजाय ये कि आप वहां पे कोई मिस्टेक कर दो, पहले उसको अपने लिए इजी कर दो। कैसे? वो वाले 2 कार्बन पकड़ लो जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, फिर देखो उनकी चारों तरफ क्या क्या लगा हुआ है। डिस्क्राइब 2 एनवायरमेंटल challenges caused by the disposal of plastics. टॉक्सिक गैसेस, अगर आप उनको बर्न करोगे तो टॉक्सिक गैसेस आर रिलीज्ड आफ्टर बर्निंग। इसके अलावा यू कैन से सर दैट। वो इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकता। हाँ, अब वो मुझे ये नहीं पता कि इज इट अ बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल। हाँ, मुझे पता है कि प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बट उसने यहाँ मुझे डायरेक्टली मेंशन नहीं करके दिया, तो दैट इज वाई। अगर आपको कुछ और ना आ रहा हो जिनमें, तब आप वो लिख लो, वरना आई वोंट सजेस्ट कि जब तक एग्जामिनर आपको बोले ना कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे वो पिछले पेपर से बोलता आता है, तब तब आप लिख सकते हो। अभी उसने डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं किया, सो डोंट। गॉट? आप और लिख दो, वाटर पोल्यूशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, मरीन लाइफ पोल्यूशन, बर्निंग से टॉक्सिक गैसेस हैं, लैंडफिल्स हैं, विजुअल पोल्यूशन होगी, प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो रहा है, माइक्रो प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर वो बोले कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो आप बोलो कि हाँ, फिर वो डिकम्पोजिंग में मसला आएगा। क्लियर? ठीक है सर। ओके। थर्मिक।
The bond breaking is endothermic, bond making is exothermic. Since the forward reaction is endothermic, which means more energy is required in bond breaking rather than bond formation. ओके, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। पहले आपने बिल्कुल एग्जैक्टली पहली लाइन आपने हमेशा क्या लिखनी, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक। नाउ व्हाई इज अ रिएक्शन एंडोथर्मिक? बिकॉज मोर एनर्जी वुड बी एब्सॉर्ब्ड in bond breaking than the energy released in bond making. So the transfer of thermal energy in a chemical reaction is called the enthalpy change. Write the symbol for an enthalpy change. So what is the symbol for enthalpy change? Shoaib, can you tell me? Sir, plus. Plus delta H. ठीक है। Carbon monoxide, water and carbon dioxide are formed during the incomplete combustion of carbon containing fuels। और क्या सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स, और क्या इफेक्ट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का? रयान, कैन यू टेल मी? सर जो अदर 6B1 का जो आंसर है, आई थिंक दैट इज कार्बन सॉलिड, बिकॉज वो इनकम्प्लीट कंबशन है तो ऑक्सीजन इनफ नहीं होगी, गुड, तो इसको हम क्या सूत पता भी कहेंगे, ये प्रोबेबली पाउडर कार्बन लाइक फॉर्म सॉलिड। होता है, इसको हम सूत का नाम भी देते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनती है, इसका इफेक्ट क्या होता है? सर टॉक्सिक गैस है तो इट कुड लीड टू सफोकेशन, एंड वो ओवरऑल भी इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर द अर्थ, इट्स वेरी डेंजरस। गुड। आगे Heather, can you tell me what are the two advantages of hydrogen oxygen fuel cell compared with the normal petrol engine जो आजकल यूज होते हैं? सर एक तो इट इज रिन्यूएबल, दूसरा इट इज द ओनली प्रोडक्ट फॉर्म इज वाटर, सो नो हार्मफुल गैस इज प्रोड्यूस्ड। गुड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिन्यूएबल? सर मतलब कि वो बार बार इस्तेमाल हो सकता बार है। बार यूज हो सकता है, ठीक है। Dilute hydrochloric acid reacts with aqueous sodium carbonate. A student titrates 20 centimeter cube of 0.050 mole per dm cube of aqueous sodium carbonate। अब ये अच्छा है ना सवाल, कोई स्टेप्स नहीं बताया उसने आपको कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है, सारा खुद करना है। एंड एंड पे कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं जल्दी से स्टेप्स बता दूंगा, फिर तीनों सॉल्व कर लें और मुझे चैट बॉक्स पे ना आंसर लिख के भेजना, फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। कोई स्टेप्स नहीं गिवन, कोई हेल्प आपको अब एग्जामिनर नहीं कर रहा है इस सवाल में। पहले लुक एट द इक्वेशन इफ इट इज बैलेंस्ड। सेकंड, जिस चीज का डाटा दिया हुआ है उसके मोल्स निकालें। थर्डली, जिस चीज का आपने कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम मास फलाना जो भी निकालना है उसकी मोलर रेशियो से उसके मोल्स निकालो। एंड फोर्थली, फिर आप अपना फाइनल निकालो जो आपने कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मोल्स यूज करके। तो चार क्लियर स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन लेट मी नो द कैलकुलेशन, just the answer for the concentration of dilute hydrochloric acid that will be used। Got it? इसको start करें। You guys have 3 minutes only। So we have 0.03। No, that is not the answer, Shoaib। अच्छा, सॉल्व कर लेते हैं, अब ध्यान से सुने। अ स्टूडेंट टाइट्रेट्स 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.0250 मोल ऑफ एक्व सोडियम कार्बोनेट। हम सबसे पहले मोल्स ऑफ एक्व सोडियम कार्बोनेट निकाल लेंगे, Na2CO3। ठीक है, इसके मोल्स कैसे निकलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या दी हुई है? 0.0250 इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 20 cm³ है, इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो ताकि डीएम में हो जाए। तो आपके पास इन मोल्स का आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁻⁴, 0.00005। अच्छा, अब मोलर रेशो के हिसाब से HCl के मोल्स शुड बी डबल। ठीक है, डबल सर। यस, कोई कुछ कह रहा है? ओके, सो द रेशो Na2CO3 जब 1 है, HCl डबल है। सो दैट मीन्स अगर ये 5 × 10⁻⁻⁴ है तो वो 2 टाइम्स ज़्यादा होंगे, 1 × 10⁻⁻³ ठीक है। कि अगर आप 0.0005 को × 2 करो तो 0.001 आपके पास आ जाएगा। Now, once we have the moles of HCl and we have the volume of HCl as well, we can now calculate its concentration by using moles divided by volume. So the moles are 1 × 10⁻³ divided by the volume, that would be 15.5 divided by 1000. That will give you the answer for concentration.
that will be 0.0645. Is it clear? Yes, sir. रायान अहमद, आपका आंसर सही था। शोएब, यू मे रीचेक। शोएब, आपको क्लियर हो गया? जी सर, वो बस मोल्स को डबल करना था, वो भूल गया हूँ। मोलर रेशियो वाला पार्ट। हम्म। जी। आगा हैदर, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। आपने सॉल्व नहीं किया था पहले? अच्छा। स्टेट द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एल्कलाइन सॉल्यूशन येलो। राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयन प्रेजेंट इन aqueous solution of alkalis। सारे alkalis में हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं। Calculate the volume measured at room temperature and pressure of carbon dioxide produced in cm³ when 2.6 grams of sodium carbonate reacts with excess hydrochloric acid. Good question. So अगर हम डाटा देखिए, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 2.65 grams of sodium carbonate. So we can calculate its moles. 2.65 divided by 23 plus 23 plus 12 plus 16 plus 16 plus 16 gives us 106. That gives an answer of 0.025. अब अगर Na2CO3 की मोल 0.025 and that means के कार्बन डाइऑक्साइड will have the same number of moles as well. तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं by 0.025 multiplied by 24,000, क्योंकि हमें वॉल्यूम cm³ में चाहिए and that is going to give us an answer of 600. क्लियर हो गया सबको? जी सर। यस सर। Hydrochloric acid is a strong acid. Define the term strong in the phrase strong acid. Strong acid में strong का मतलब क्या है? Complete dissociation. Complete dissociation किस चीज में? H+ ions में। Oxides of nitrogen contribute to acid rain. एक और adverse effect बताएं oxides of nitrogen का। Smog, lung issues, breathing issues, suffocation, respiratory issues, ठीक है, asthma. Oxides of nitrogen are removed from car exhausts by catalytic converters. तो मैंने आपको बताया बड़ा आसान सा तरीका है। NO जो है ना, वो अपना ऑक्सीजन किसको दे देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को, ताकि वो CO2 बन जाए और NO सिंपल N2 बन जाए। दिस इज द इक्वेशन फॉर योर catalytic converter, and that is all for this paper.